3:45 पे आऊंगी क्योंकि मैं सिर्फ चाय पी रही थी। नहीं, मुझे असल में फिर क्योंकि 5 o'clock पे फिर मुझे मेरी क्लिनिक की तरफ भी निकलना है। So I'm doing my private practice at Maven Hospital. So now we are live. Please give me a second. So let's start our session. Assalamu alaikum. Good afternoon. I'm Ikra Haris, anchor person and journalist. First of all, I thank Pakistan Alumni Network for providing us a platform to discuss something very important in our lives and our lives of our loved one. There is no doubt in it that this pandemic, COVID-19, has changed our lifestyles, our living habits, our traveling habits, our moving habits. And it also teaches us how to live in the home without traveling, without any use. एक कहावत भी अक्सर कहा जाता है कि जो कुदरत है, जब चीज़ें कुछ एक्सटेंट से ज़्यादा हो जाएँ तो फिर कुदरत खुद उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करती है। अक्सर थ्योरीज़ इस पर भी कोविड के ऊपर काफ़ी हद तक आ भी रही हैं। आज का जो प्लेटफ़ॉर्म है और हमने हमेशा देखा, वी हैव ऑलवेज़ सीन दैट पाकिस्तान अलुमनाई नेटवर्क हैज़ प्रोवाइडेड अ प्लेटफ़ॉर्म टू डिस्कस सच इश्यूज़ व्हिच हैज़ अ कम्युनिटी इफेक्ट्स एंड ऑलवेज़ डिस्कस द इश्यूज़ व्हिच फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी. So today our topic is COVID and safety of our children, how to protect our children from such a pandemic, because now the schools are open, colleges are open, parents are still afraid to send their kids off to school, and those kids who are going to school, how we can save them. First of all, I would like to give you a brief introduction of my guest, of my panel who is joining me, and they are expert in their fields. First, I have Dr. Mohammad Fariduddin, Head of Pediatric Medicine and Chair Faculty, the Indus Hospital, Karachi. And the second one is Dr. Fariha Irfan, Health Policy and Strategy Specialist, Punjab Government. So first, I would like to start with Dr. Fariha. Dr. Fariha, as you are associated with Punjab government and you have been noticing all this pandemic and the steps that government has been taken, first of all, I would like to ask, which children are most vulnerable for contracting COVID-19, because parents have such misconceptions regarding it? That's a very good question. Well, to be very, very specific, any child who's exposed to an adult who has COVID or another child who has COVID is going to be the most vulnerable to the infection. Aside from that, we have children who are malnourished, children who are immunocompromised, like we had this discussion with Dr. Farid as well. Any child who's underweight, for example, which is part of malnourishment, or already is prone to infections for any reason, does not live in a crowded house, is not coming from a very well-to-do family, and is attending, for example, public school right now, or is exposed to external environment which may have COVID patients. And as we know that COVID can spread from asymptomatic people as well. So anyone who's physically vulnerable due to poor health and is exposed to these infections more than the other people would be more vulnerable, and that means children as well. I would also defer to Dr. Farid for this answer, because he's actually the pediatric expert in this panel. So Dr. Farid, as Dr. Fariha mentioned, I'm a mother of a 4.5-year-old girl, and my child also goes to school. Now the thing is, before this pandemic, whenever the season changes, you have an idea that the cases of flu, fever increases by time. एक कहते हैं मौसमी बीमारी बच्चों को बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो एलर्जिक हो जाते हैं कई चीज़ों से, और जब सर्दी आती है तो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार बहुत हद तक बढ़ भी जाता है. For that we always go for the flu shots also. अब कोविड और के जो सिम्टम्स हैं वो भी टिपिकली सेम ही है, बिकॉज वो भी आपकी ब्रीदिंग इफेक्ट करते हैं, आपको नज़ला ज़ुकाम होना शुरू कर देता है. ये डिफरेंशिएट बच्चों में किस तरह किया जाए? ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया आप लोगों ने. It's always so wonderful to be with Puran, and I'm thankful to you all. Okay,
मुझे इसमें थोड़ा सा जरा मैं अपनी चीज़ों को मैं एक दो बातों को थोड़ा सा और इलाबरेट करूंगा, थोड़ा सा डॉक्टर परिया की बात को भी इलाबरेट करूंगा कि अब ये जो कोविड है ना, ये कोविड ये इतने आसानी से जाने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे हम चाहें या ना हम चाहें, बट आई थिंक सो दैट वी हैव टू लिव विद इट, ठीक है, टिल वी हैव एन इफेक्टिव वैक्सीन और द नेचर किल्स द कोविड इटसेल्फ, टिल देन वी हैव टू लिव विद इट। एंड वी हैव टू लिव विद इट का मतलब ही ये है कि इस वक्त अभी हालात यही हैं कि अभी हमारे पास जितने ये इस वक्त चल रहे हैं चीज़ें कि लोग जो है वो ये कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि इस वक्त पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जा रहे हैं और सारी चीज़ें, मतलब आप कब तक के लोगों को रोक सकते हैं? आप कितने आपने लॉकडाउन कर लेते हैं, आप कितने दिन तक कर लेंगे? महीना 2 महीने, नॉट मोर देन दैट, इससे ज़्यादा आप किसी को नहीं बिठा सकते। सो इसके साथ रहने के लिए प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। तो खैर ये तो इतना आसानी से कोविड जाने वाला नहीं है। कमिंग टू योर पॉइंट इज दैट कि जो बच्चों के अंदर देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बच्चों में हमने बहुत सारे मतलब है कि बच्चों में हम देखते हैं, ठीक है, लेकिन शायद अल्लाह का शुक्र है कि शायद बच्चों में हमने उतना उस तरीके से नहीं देखा कोविड को जिस तरह से हमने बड़ों में कोविड देखा है। What I would really suggest is कि इस वक्त अभी कोविड को अभी हम जिस तरीके से देख रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बच्चों में हम ज्यादा देख रहे हैं। मैलनरिश्ड भी सिर्फ और सिर्फ मैलनरिश नहीं, क्योंकि अगर आप मैलनरिश को अगर आप लेंगे तो शायद इस वक्त मैलनरिश हमारे पास नियरली 60% ऑफ पॉपुलेशन पाकिस्तान की, अगर हम अर्बन और रूरल को मिला लें तो 60% पॉपुलेशन जो है वो हमारी बच्चों की वो मैलनरिश्ड है। लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमने उतने बच्चों में हमने नहीं देखा। हाँ, लेकिन वो बच्चे जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ठीक है, मैलनरिश्ड होने के अलावा भी या वैसे भी हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं लेकिन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके अंदर है। अब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कौन से हैं? कि जिनको कोई बहुत क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिजीज है, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर वो कोई प्रोटीन्स लूज कर रहे हैं, जैसा कि सीलेक डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस है, या कोई हार्ट डिजीज है, या ऐसी से, या कोई पेट की क्वेरी है, या कोई उनको, या फिर वो सीपी है, फॉर एग्जांपल सेरेब्रल पाल्सी, मेंटली रिटार्डेड है, इस तरह के बच्चों की इम्यूनिटीज निस्बतन लो होती है। या वो बच्चे जो कि किसी क्रॉनिक मेडिकेशंस पर हैं तो उनकी भी इम्यूनिटी लो होती है। ये वो बच्चे हैं कि जिनको बहुत जल्दी जो है वो कोविड हो रहा है, और बाज़ औक़ात ऐसे भी बच्चे हैं या इवन कैंसर के बच्चे हैं जिनको कीमोथेरेपी चल रही है। ये वो बच्चे हैं जिनको कोविड एक दफ़ा नहीं, जिनको 2 दफ़ा भी हुआ है, और ऐसे बच्चे हमारे पास आए हैं। तो एनीवेज अब ये तमाम बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि अब हम ये देख लें कि जी के इनको जो सबसे बेहतरीन जो चीज़ है इस वक्त वो यही है कि अब आजकल जो वैक्सीनेशन का ट्रायल भी स्टार्ट हुआ है, और वो ये कि वैक्सीन की अवेलेबल, अब ये कि वैक्सीन एक ट्रायल फेज पे ज़रूर है, अभी तक पब्लिकली नहीं हुई है, लेकिन बहरहाल अगर वैक्सीन इंशाल्लाह आ जाएगी तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेस किया डॉक्टर साहब, मुझे मौका दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। आई गेस लेट्स मूव इन स्टेप बाय नॉट दैट। पहले तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हमें यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कुछ भी पूछना चाहते हैं डॉक्टर फरीहा से, डॉक्टर साहब से कुछ भी पूछना चाहते हैं, पीड स्पेशलिस्ट हैं ये, यू आर वेलकम टू कमेंट, और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल, आप अपने क्वेश्चन जो है वो पुट इन करें, और हम अपने पैनलिस्ट से उसको जरूर पूछेंगे। अच्छा डॉक्टर फरीहा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अब ये जो स्ट्रैटेजी, अब बच्चों ने स्कूल तो जाना ही है, फॉर हाउ लॉन्ग, जिस तरह डॉक्टर फरीद ने भी कहा, हम कितनी देर उन्हें रोक सकते हैं स्कूल जाने से, कितनी देर ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर हम जा सकते हैं? नाउ द किड हैज टू गो ऑन टू द स्कूल। अब द प्रॉब्लम इज कि छोटे बच्चे जो हैं, अबव 10 के ईयर्स के जो बच्चे हैं, वो मास्क आराम से लगा लेते हैं, उनको समझा भी देते हैं, वो समझ भी जाते हैं। लेकिन 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं, जो टॉडलर्स में हैं, या नर्सरी में हैं, या प्री केजी में हैं, जी, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, I can hear you. Go ahead. जी, मेरा सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी एज 10 साल से कम है, उनके वालिदैन उन्हें मास्क लगा के स्कूल तो भेज देते हैं, बट उनके लिए बड़ा मसला होता है मास्क को 3 से 4 घंटे लगा के कंटिन्यूअस रखना। इसके लिए क्या पंजाब गवर्नमेंट कोई स्ट्रैटेजी डिवाइस कर रही है, या फिर किस तरह आप लोग मॉनिटर करते हैं? पेरेंट्स बड़े परेशान हैं अक्सर इस मामले को लेकर, बिकॉज बच्चे तो एहतियात नहीं करेंगे, उन्होंने आंखों को भी हाथ लगाना है, नाक को भी हाथ लगाना है, फेस को भी टच करना है। इससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि पंजाब गवर्नमेंट ऑब्वियसली इज टू बिग, तो जो कोविड को जो 2 लोग देख रहे हैं, वी आर जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ दैट।
पंजाब गवर्नमेंट ने एक बहुत डिटेल्ड SOPs बनाई थी फॉर स्कूल चिल्ड्रन, फॉर बेसिकली फॉर पेरेंट्स ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड ओल्डर स्टूडेंट्स एज वेल, और इसके अलावा स्कूल्स के लिए भी बनाई थी मल्टीपल लैंग्वेजेस में, उर्दू और इंग्लिश में एटलीस्ट उन्होंने वो पब्लिकली अवेलेबल भी की है। एंड एट द सेम टाइम टेस्टिंग होती है पंजाब में एटलीस्ट हो रही है, व्हिच आई नो फॉर श्योर के तमाम जो स्कूल चिल्ड्रन हैं या कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के, और उनका जो स्टाफ है उसकी ये सैम्पलिंग डेली बेसिस पे इस वक्त हो रही है थ्रू PCR। However, coming to mask wearing in younger children, देखें बच्चों में 5th grade तक के बच्चे जो 10 years तक के होते हैं उनके अंदर ये डेफिनेटली चैलेंज होगा। 5 years से नीचे जो नर्सरी प्रेप के बच्चे हैं उनके ऊपर तो वैसे ही मास्क की नहीं जरूरत होनी चाहिए। इसमें बिकॉज आई एम फ्रॉम पब्लिक हेल्थ, सो मैं पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी, और वो है प्रिवेंशन का। इसमें SOPs को हम फॉलो करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऑब्वियसली स्कूल्स के अंदर भी किसी न किसी लेवल पर लैब्स आता है। सो ये पेरेंट्स के ऊपर आ जाता है कि दे मेक श्योर कि उनके जो बच्चा उनका स्कूल जा रहा है उसके स्कूल में, उसके क्लासरूम में SOPs को फॉलो किया जा रहा है। अब अच्छा SOPs डॉक्टर क्या है इन जनरल? डॉक्टर फरीहा Yes. प्लीज कैन यू प्लीज क्लियर दिस थिंग। अभी आपने कहा कि जो बिलो 5 के बच्चे हैं उनके लिए मास्क इतना जरूरी नहीं है। मैं चाहूंगी आप इसको थोड़ा सा एलिबोरेट करें कि अगर एक SOP के तहत उन्हें पहनना है लेकिन जरूरी बहुत ज्यादा क्यों नहीं है? नहीं, उनकी SOP उनके ऊपर ये वाली एप्लीकेबल होगी ही नहीं। उसकी वजह ये है कि देखें हम लोग जो भी हम लोग SOPs बनाते हैं वो एविडेंस बेस्ड होता है। एविडेंस इस वक्त ये आ रहा है कि अंडर 5 के अंदर वैसे ही इंसिडेंस बहुत कम है डिजीज का, उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैचिंग द इन्फेक्शन भी बहुत कम है। अंडर 5 के बच्चों की एक स्मॉल प्रोपोर्शन स्कूल जा रही है, कुछ 4 year old जा रहे हैं, कुछ 5 year old जा रहे हैं, सारे वो भी नहीं जा रहे। इसके अलावा देखें हमने WHO और CDC की हम गाइडलाइंस को इस मामले में फॉलो करते हैं, और एविडेंस यही सजेस्ट करता है कि अंडर 5 में कंप्लायंस वैसे ही पुअर है बच्चों की। यू कैन नॉट एनफोर्स मास्क वेयरिंग, सेफ मास्क वेयरिंग, और 3 and below पे तो वो इनकरेज ही नहीं करते कि किसी भी किस्म का फेस कवर इस तरह का लगाया जाए। सो जो फोकस है हमारा इस वक्त वो 1st grader से 5th grader तक का है जिनके अंदर कंप्लायंस पुअर होगी, who may be a little bit more vulnerable than those younger children. But overall जो point है वो ये है कि mask wearing is just one step. अगर क्लासरूम वेंटिलेटेड नहीं है, अगर क्लासरूम क्राउडेड है, अगर क्लासरूम के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, मोर देन 10 or 15 बच्चे बैठे हुए हैं, अगर एयर जो सर्कुलेट नहीं कर रही है, अगर कोई बच्चा सिक है एंड ही इज आल्सो इन द स्कूल इन द सेम क्लास विद दीस चिल्ड्रन, तो ये आप उसमें आपकी अपने जितनी मर्जी प्रिकॉशन हो जाए इट वोंट बी हेल्पफुल। सो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस तरह की SOPs एक चीज़ है, और ऑन टॉप ऑफ दैट है थोड़ी सी कॉमन सेंस है। इस वक्त SOPs फॉर एग्जांपल वेंटिलेशन को नहीं कवर कर रही है। वेंटिलेशन की इसलिए नहीं कवर करी, पुराना लिटरेचर जितना आ रहा है, पुराने से मराद टू बी वेरी ऑनेस्ट मार्च इज पुराना नाउ, इतना इवॉल्व हो गया कोविड का सारा स्टडीज और उसको देखें तो अब ये है कि एयरबोर्न है वायरस। सो हम हाथ जितने मर्जी धो लें, अगर हमारा फेस नहीं कवर्ड है, हमारी नोज नहीं कवर्ड है, तो हम दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। और जो मास्क की प्रोटेक्शन है वो दूसरे को देने के ऊपर है, उसकी आपके अपने लिए प्रोटेक्शन इतनी ज्यादा नहीं होगी कभी भी जितनी आप दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, और उसकी कुछ डायग्राम्स भी बहुत सारी अवेलेबल है। सो जो आइडियल है वो ये है कि आपके रूम्स वेंटिलेटेड हो, आपके रूम्स में एयर सर्कुलेट होती हो, दरवाजे खुले हो, क्राउडिंग कम हो, ठीक है। क्राउडिंग कम होगी ना तो ये वाले जो ये मास्क इज जस्ट वन NPI नॉन फार्मास्यूटिकल, ठीक है। आपके जो एडिशनल हैं वो आपके ये पेरेंट्स के ऊपर है कि अगर उनको लगता है कि उनका बच्चा नहीं ठीक है, मत भेजें स्कूल। और अगर उनको लग रहा है कि उनका बच्चों से पूछें कि आज किसी मतलब नॉट इन अ बैड इंटेरोगेटरी वे, लेकिन बच्चों को एंगेज जरूर करें ताकि उन्हें पता हो कि अगर किसी को फ्लू हो रहा है, किसी को नजला जुकाम हो रहा है, तो बच्चा स्कूल ना आए, ठीक है। अब सेकंड वेव आ गई है, ठीक है, नहीं आ भी गई है और हम उससे डील भी कर रहे हैं। वैसे वी शुड प्रे कि वो उससे ज्यादा उस तरह ना हो। अच्छा डॉक्टर फरीहा, जिस तरह अभी डॉक्टर फरीहा ने भी बात की, मैं चाहूंगी सर आप इसको जरा एड्रेस करें इस इशू को कि अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा, जो डाटाज आपको पता है
रोज बरोज बदलती सूरत हाल में नए डाटा सामने आते हैं। नियरली 14 मिलियन चिल्ड्रन ऐसे हैं जिनको वैक्सीन 2019 में नहीं मिली। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो जो गवर्नमेंट आपको वैक्सीन ऑफर करती है वो एक महदूद वैक्सीन होती है, और उसके बाद कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो प्राइवेटली बच्चों को वैक्सीन का बाकी जो कोर्स है वो पूरा कराते हैं। इस पेंडेमिक के बाद, कोविड के बाद, चूंकि एक सिचुएशन क्लियर नहीं थी कि किस किस्म का डिजीज है, किस तरह फैलता है, इसके क्या प्रिकॉशंस है, कुछ वालिदैन ने वैक्सीन भी अपने बच्चों को लगवाना बंद कर दी। गवर्नमेंट की तरफ से भी जो लगाई जा रही थी वो भी किसी हद तक कम हो गई। इस पूरी सिचुएशन के अंदर आप क्या समझते हैं कि वाकई एक बच्चे की सेहत पे और इम्यूनिटी पे असर पड़ेगा और वो जल्दी कोविड को कैच कर सकता है? ओके, देखिए दो बातें हैं इसके अंदर जो आपने जो सवाल पूछा है। पहली बात तो ये है कि एक तो वो है जो कि वैक्सीन जो कि रूटीन वैक्सीनेशन है वो नहीं हुई हैं, एंड और एक बहुत बड़ी तादाद है, मिलियंस हैं इस वक्त बच्चे ऐसे कि जिनको रूटीन वैक्सीनेशन नहीं मिली है, एंड दे आर प्रोन टू हैव इन्फेक्शंस। और ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अभी हम केसेस ऑफ मीजल्स, मम्स, इस तरह के केसेस अभी हम ज्यादा देख रहे हैं क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं हुई है बच्चों की, और आ रहे हैं काफी सारे केसेस इस तरह के आ रहे हैं। खैर उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अच्छा। और लोगों को असल में डर खौफ इतना बैठ गया था कि रूटीन वैक्सीनेशन रुक गई थी। पोलियो का एकदम से पोलियो ने भी अपसर्ज किया, ठीक है, पोलियो के भी अभी जरा रुके हुए हैं, लेकिन पोलियो के भी केसेस अब आने शुरू हो जाएंगे। ये वैक्सीन के आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब वैक्सीन के ना होने के। अब इम्पॉर्टेंट बात ये कि यस, ये जो फ्लू की जो वैक्सीन हैं जिस पर हम पहले भी आप बात कर रही थी, देखिए फ्लू की वैक्सीन का हम अभी कह रहे हैं कि सबको लगाने चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि इस वक्त फ्लू की वैक्सीन मार्केट में है ही नहीं। और इस वक्त इतने सारे लोग मेरे पास आते हैं कि जी के फ्लू की वैक्सीन हम लगाना चाह रहे हैं, फ्लू शॉट लगाना चाह रहे हैं, और फ्लू शॉट नहीं मिल रहा है। अब फ्लू शॉट भी कुछ एक जगहों पर है, वो भी उनके पास, और उनके अपने कुछ अपने सेट पेशेंट्स के लिए, जनरल पब्लिक के लिए फ्लू शॉट्स भी अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन ये बात जरूर है कि हाँ, एक दफा अगर कोई फ्लू शॉट कोई लगा लेते हैं तो एटलीस्ट जो कॉमन एडिनो वायरस और दूसरे जो वायरसेस हैं उससे बच जाते हैं। ये भी मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी क्रॉस की एक्टिविटी होती जरूर है। एक वैक्सीनेशन अगर आप किसी चीज के लगाते हैं तो उससे कुछ थोड़े बहुत अड़ोस पड़ोस के जो वायरसेस होते हैं उससे भी आपको प्रिवेंशन मिल जाता है, लेकिन कोई 100% इम्यूनिटी नहीं होती, और ये दूसरे वायरसेस के साथ भी आपको आप कैच कर सकते हैं। अच्छा, जहां तक एक और बात भी एक एड ऑन में करूंगा कि जो ये बच्चों के अंदर जो बात कर रहे थे कि यानी बच्चों का यानी छोटे बच्चों का आपस में एक दूसरे के साथ मिलने पर एक दूसरे को इंटरेक्ट ना करना, तो या के डिजीज का इंटरेक्ट ना होना, ये काफी हद तक बात सही है। क्योंकि देखिए असल में बच्चे, ये अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे स्कूल्स वगैरह इतने प्रॉपरली वेंटिलेटेड हों कि उसके अंदर धूप का गुजर आ रहा हो, हवा अगर गुजर रहे हो, और क्लोज अगर नहीं हो, तो काफी लेस चांसेस हैं कि जो है वो कोविड हो। और लाइक वाइज मैं ये चीज भी कहना चाहूंगा कि जो एक स्कूल की इंतजामिया को भी ये जरूरत है कि वो खुद इस बात को मेंटेन करें, डिस्टेंसेस को मेंटेन करें, और इसके अलावा जितना हैंड वॉशिंग पर और सारी चीजों पर वो करें। हाँ, और जहाँ पर वो रोजाना देखें तो रोजाना की बुनियाद पे कि अगर किसी बच्चे को अगर ज्यादा अगर कोई फ्लू या कॉफ या फीवर अगर ज्यादा अगर हो रहा है तो उसके लिए पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जी आप अपने बच्चे को ना भेजें। और ना भेजने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप उसके अटेंडेंस को कम करें या कहीं और इनकी मार्किंग में कुछ प्रॉब्लम करें। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू से। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी पता, एक चीज इसके अंदर क्लियर कर दीजिएगा कि जो फ्लू शॉट्स, अक्सर वालिदैन ये समझते हैं कि अगर वो फ्लू शॉट्स अपने बच्चों को लगवा देंगे तो वो कोविड से महफूज रहेंगे क्योंकि सिम्टम्स दोनों के मिलते जुलते हैं। ये मिथ है, इसको भी जरा क्लियर कर दीजिए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं है। अगर फ्लू शॉट अगर इतने ही अगर कामयाब अगर हो रहे होते तो ये वैक्सीन के ट्रायल नहीं होते। देखें, ये जो फ्लू शॉट्स जब ये बनते हैं तो ये याद रखिएगा कि ये फ्लू शॉट्स पिछले 1 साल के वायरसेस को उनको लेकर और उनके साथ उनसे एक्सट्रैक्ट करके, उनके डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके, और फिर उसके बाद में फिर उनके अगेंस्ट वैक्सीन बनाई जाती है। लेकिन ये कोविड असल में इतना नया था कि इसके लिए अभी भी वो जो वैक्सीन अलग से ही आ रही है, और वो अभी वैक्सीन जब एक दफा ट्रायल फेज में है, जब एक दफा उसका ट्रायल हो जाएगा तो फिर उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिर वो वैक्सीन होगी जो कि सुनने में ये आया है कि वो ना सिर्फ है कि कोविड से भी बचाएगी, बल्कि कोविड के अतराफ के जो और भी जो इससे रिलेटेड जो और जेनेटिकली इंजीनियर्ड किस्म के जो के वायरसेस हो सकते हैं, उनसे भी शायद के प्रिवेंशन मिल सके। ठीक है। अच्छा डॉक्टर फरीहा, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू जो हम अब फेस करने जा रहे हैं, दैट्स द इशू ऑफ स्मोग।
स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट लाहौर सिटी में बात करें तो स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, और लास्ट ईयर हमने देखा कि स्कूल्स को स्मोक की वजह से भी बंद करना पड़ा. नाउ वी आर फेसिंग टू इश्यूज, द कोविड एंड द स्मोक, और हमें ये पता है कि स्मोक भी आपके ब्रीदिंग इश्यूज क्रिएट करती है, लंग्स को इफेक्ट करती है, बच्चों के लिए वो भी ठीक नहीं है. इस सिचुएशन में आप क्या रेकमेंड करेंगी कि क्या किया जाए, कि फिर अगर आप क्लासरूम में एसओपीज फॉलो करा लेते हैं तो चाइल्ड हैज टू मूव आउटसाइड, और स्मोक भी बहुत ज्यादा हो जाती है, उस सिचुएशन में क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए? ये मेरा बिल्कुल पर्सनल व्यू होगा जो मैं अब आपको दूंगी. इसका मेरे डिपार्टमेंट अच्छा. से और मेरी जॉब से, और ये मेरा एज अ पब्लिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ रिलेटेड पर्सन से, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा पेरेंटल डिस्कशन के ऊपर. ठीक है, इंडोर अच्छा. एयर स्लाइटली लेस पोल्यूटेड होती है एज कम्पेयर टू आउटसाइड एयर. ठीक है, लेकिन अगर आपके पास एक कोविड आउटसाइड मौजूद है, आउटसाइड से मुराद स्कूल है, मार्केट्स हैं, आपकी कम्युनिटी है, और ऑन टॉप ऑफ दैट आपके पास स्मॉग का इशू भी आ रहा है, लेकिन स्मॉग तो खैर इस वक्त हमारी एवरेज वैसे भी अनहेल्दी में जाती है, 150 से ऊपर ही रहती है. एवरेज आउट भी करें तो 180, 190, 200 के करीब लाहौर में है इस वक्त. तो ये एक बहुत ब्रॉड इशू है. स्मॉग को हम, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी अर्बन प्लानिंग के बगैर नहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं. अब सवाल ये है कि आप अपने बच्चे को कितना वल्नरेबल बनाना अफोर्ड कर सकते हैं. It's a blunt question. It's not a very nice question. लेकिन it will boil down to parental discretion in a lot of, at least in this space, क्योंकि यहाँ पे I would imagine कि parents are educated and not disenfranchised जैसे कि periphery में होते हैं. So लाहौर के अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्मॉग अफेक्ट ना करे, तो उसके लिए तो उनको खुद थोड़ा सा फाइट करना पड़ेगा. जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है, सेम रूल है. वो ये है कि आप एक्टिव सिटीजनरी का मुजाहरा करें, और वो ये है कि अपने बच्चे के लिए बेहतर डिमांड करें. अगर हम बात करते हैं इसकी के रिस्क कितना है, तो यस, रिस्क कंपाउंड होगा, रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा भी. 3 चीजें हैं इसमें. स्मॉग है, आपकी कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ रही है, और तीसरी जो चीज है वो विंटर. विंटर में ये होता है कि आप बाहर वैसे ही नहीं बच्चे को भेजेंगे, अब आप अंदर रहेंगे, क्लासेस में भी बच्चे स्कूल्स के अंदर ही रहेंगे, विंडोज आप नहीं खोल सकते क्योंकि बाहर से ठंड आएगी. ठीक है, लाहौर गेट्स रियली कोल्ड समटाइम्स, और अभी आपको पता, अगर आप में से लाहौर में, तो दे वुड नो कि इस वक्त ठंडा होना शुरू हो गया. जब ठंड होगी तो दरवाजे बंद होंगे तो आपकी वेंटिलेशन वहीं पे खत्म हो जाएगी. सो वी आर कंपाउंडिंग. अब हमारे पास बैलेंस क्या आ रहा है कि एक तरफ हमारे पास स्मॉग है जो बाहर है, दूसरे हमारे पास इंडोर का इशू है, वो है कोविड. तो हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है जाती, एंड वो ये है कि एज अ साइंटिस्ट वो ये है कि बच्चों को प्रोटेक्ट करें एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 months. बच्चे अगर, स्पेशली छोटे बच्चे, क्लास 6 तक के, अगर वो 2-3 महीने एंजॉय कर लेते हैं अपने मम्मा पापा के साथ टाइम, तो करने दें उनको. मुझे पता है कि होम केयर डिफिकल्ट होती है, मदर्स स्पेशली अगर वर्किंग हो या केयर गिवर ना हो कोई, तो मुश्किल होता है. लेकिन याद रखें कि ये 3 महीने अभी हमारे आगे मुश्किल के हैं, स्पेशली इन लार्ज अर्बन एरियाज, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, बिग सिटी, ऑल ऑफ देम. और हमारी ज्यादा पॉपुलेशन भी वहीं पर रहती है. वहीं पर स्मॉग ज्यादा है, वहीं पर कोविड ज्यादा है, वहीं पर स्कूल ज्यादा हैं, वहीं पर बच्चे ज्यादा हैं. तो ये सारी की सारी चीजें जब आप इकट्ठी देखते हैं ना, तो एक बहुत अनहेल्दी एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर दी अपने बच्चों के लिए, अनफॉर्चुनेटली. तो अब इसके अंदर, लेकिन but as it's your personal suggestion to keep children at home, I have personally saw the mothers who wanted their kids to go to school daily rather than to the alternative days. They are so much irritated because of the kids at home. They actually want that, but some parents are just don't sending their kids till now when they are attending the online classes. Dr. Fareed, please tell me, अभी आपने जिक्र किया वैक्सीन्स का, कोविड हो और वैक्सीन्स का नाम सुनकर एक बड़ा रिलीफ भी आता है अक्सर, और थोड़ा सा वो भी होना शुरू हो जाता है कि वाकई इसकी वैक्सीन आ गई. आपने उन ट्रायल्स का भी जिक्र किया. आई वांट कि आप हमारी जो ऑडियंस है उसको बताएं कि ये ट्रायल किस तरह हो रहे हैं, आपने रैंडमली कैसे सिलेक्ट किए, और अब तक रिजल्ट्स क्या आए हैं इसके, और मार्केट में कब तक अवेलेबल होगी? देखिए, ये जो ट्रायल्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वैक्सीन का, ये स्टेज 3 का ट्रायल है.
ठीक है। स्टेज 3 हम उस वक्त कहते हैं जब स्टेज 1 होता है, जो कि हम एक जिसके अंदर हम वैक्सीन को हम और दूसरे के हम ऑब्जेक्ट्स पर और हम कहीं और पर, जैसा कि हम टेस्टिंग करते हैं, उनका लेबोरेटरी टेस्टिंग ज्यादा होती है। स्टेज 2 होता है जब हम एक एनिमल्स के ऊपर हम उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, और स्टेज 3 होती है जब वो ह्यूमंस पर आ रही होती है। और ये भी जो स्टेज 3 है, ये भी वो वाला स्टेज है जिसके अंदर इनको हम ये कि जिस पर बड़ी ये ने बहुत काफी सारा काम हो चुका है इसके ऊपर। और ये अभी इस वक्त मेरा ताल्लुक चूंकि इंडस हॉस्पिटल के साथ है, तो इंडस हॉस्पिटल का इज वन ऑफ द सेंटर जहाँ पर ये वैक्सीनेशन की ट्रायल्स हो रही हैं। और इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ अगले को जाना है। बस सिर्फ इसका एक ही सारी चीज है कि ट्रायल उसके लिए है जिसको अब तक के कोविड नहीं हुआ है, ये उसके लिए वैक्सीन है। और वो आए और आने के बाद में एक परफॉर्मा होता है, वो उसको पूरा डिस्कस करते हैं। उसके बाद में उनको बताया जाता है कि जी आपको इतने दिन तक के, अब उसके अंदर हम आपको जी के कॉल्स भी करेंगे, हम आपकी खैरियत भी दरियाफ्त करते रहेंगे। और उसके बाद में जब ये पूरी की पूरी ये ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसके बाद में पूरी इस पर एक रिसर्च होगी। और उम्मीद ये है कि उसके बाद में फिर ये वैक्सीन एक इसका जो ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये मार्केट के अंदर आ सकती है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड इज कि ये वैक्सीन को मार्केट में आने में एटलीस्ट अभी मार्च से अप्रैल लग जाएगा, अगर बहुत सब कुछ जल्दी भी अगर हुआ तो। क्योंकि कोई सी भी वैक्सीन एकदम से फौरन नहीं आ सकती, चाहे बेशक उसका कितना ही टाइम क्यों ना लगे, लेकिन कम से कम उसमें 1 ईयर लग जाता है जब तक कि वो वैक्सीन पब्लिक के लिए वो इसके कोई साइड इफेक्ट्स जिनको अब तक वॉलंटरली जो लोग ऑफर कर रहे हैं उन्हें लगाया है, उनमें बच्चे भी होंगे लाजमन? बिल्कुल जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, किसी भी एक पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए हम सबको कि कोई सी भी वैक्सीन 100% इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती, ठीक है। या अगर आप ये कहेंगे कि जी कि आज मैंने वैक्सीन लगवा लिया तो अब मुझे गारंटीड कि मुझे आइंदा कभी भी मुझे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर 1, चाहे कोई सी वैक्सीन हो, उसके अंदर जो है वो उसका एक लूप होल कहीं ना कहीं जरूर होता है। नंबर 2 बात ये कि वैक्सीन का के उसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े बहुत जरूर होते हैं। वो जो माइल्ड सा फीवर, माइल्ड सा उस जगह पे कोई हल्का सा इरिटेशन हो सकती है, या फ्लू लाइक सिम्टम्स आ सकते हैं, ये किसी भी वैक्सीन के साथ हो सकता है। और जिनको कोई एलर्जी है, या जिनको उस वैक्सीन के साथ कोई बहुत ही कोई प्रॉब्लम अगर होता है, तो डेफिनेटली उसके लिए भी हमारे पास इलाज मौजूद होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक के जितनों को वैक्सीनेशन हुई हैं, मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट्स तो नहीं पता, लेकिन जितना मेरे कोलीग्स ने वैक्सीनेशन करवाया था, तो मुझे उनसे यही पता चल रहा था कि जी के मेजॉरिटी को सिवाय इसके के बहुत हल्का से एक आध दफा कोई माइल्ड सा फीवर हुआ है, और इसके अलावा कोई और अब तक के उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सो एज फार एज अभी तक के जो कंसर्न है, तो ये वैक्सीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे उस पर रिजल्ट के साथ चल रही है। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर फरीहा, जिस तरह जिस वैक्सीन का जिक्र किया भी, जी मैं उसी जाने पा रही हूँ। अभी आपने जिक्र भी जिस तरह डॉक्टर साहब वैक्सीन का बता रहे थे, यू वांटेड टू एलेबोरेट द सप्लाई चेन फॉर अ वैक्सीन। कहाँ अभी इसके डेमोज हो सकते हैं, वॉलंटरली लोग ऑफर कर सकते हैं करवाने के लिए? नहीं, मेरा जो है इंटरेस्ट, क्योंकि आई एम इन पब्लिक हेल्थ नाउ, हम देखते हैं कि मैस वैक्सीनेशन, अगर ये वैक्सीन अप्रूव हो जाती है, व्हिच सीम्स टू बी द केस कि इंशाल्लाह हो जाएगी, इवन देन हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये वैक्सीन किस तरह अवेलेबल होगी लोगों को, और हम लोग इसके लिए फ्रेंकली तैयार नहीं है इस वक्त। कोई भी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग फेडरल एंड प्रोविंशियल या टेरिटरीज, वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। डॉक्टर फरीद में करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये रेफ्रिजरेशन इस वैक्सीन को चाहिए, 4 to 8 डिग्री के ऊपर इसको रखना होता है। बिल्कुल सही। अभी हमारे मुल्क में, अगर मैं बहुत ही बड़ा एस्टिमेट भी अगर लगाती हूँ कि हमारे 500,000 to 1 million लोगों को हो गया है, डिटेक्टेड अनडिटेक्टेड कोविड हो चुका है, that still leaves over 200 million people, 215 million people जिनको वैक्सीनेशन की जरूरत पड़ सकती है। वैक्सीनेशन का अगर ये सिंगल शॉट भी हो, तो जिसका मतलब ये है कि हमें 21 करोड़ वैक्सीन शॉट्स चाहिए, और उसके लिए हमारे पास इस वक्त नंबर 1 हमारे पास प्लान नहीं है कि हमने उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, हमने प्रोक्योर कैसे करनी है। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं एक पढ़ी लिखी ऑडियंस से बात कर रही हूँ। I want कि आप लोग ये इशू को अपने लेवल पे जरूर एलिवेट करें। Plus, Dr. Faria, the cost of the vaccine. If I'm not wrong, I heard someone on the TV definitely
The doctor was mentioning the price around 15 to 20,000. Please correct me if I'm wrong. नहीं अभी इतनी नहीं है। इस वक्त एक तो ये कि एक्सपेरिमेंटल फेज में जब भी ड्रग होती है तो हम कोई प्राइस, मार्केटिंग प्राइस को नहीं हम डिटरमिन कर सकते, लेकिन अगर हम उस प्राइस को इस वक्त साइड पे भी रखें, हम कहते हैं कि हमें फ्री भी मिलेगी दवाई, तभी हमें रेफ्रिजरेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए, बिकॉज ये वैक्सीन ओरल वैक्सीन नहीं है, दिस इज अ शॉट, दिस इज एन इंजेक्शन, एक टीका लगेगा, ठीक है। तो ये टीका लगाना, 21 करोड़ टीके लगाने का मतलब ये है कि यू हैव टू हैव हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हु आर ट्रेन्ड इन दिस, जो कि आपके पास वैसे ही शॉर्ट है। तो ये एक इतना मैसिव ऑपरेशन अगर हमने करना है, इंशाल्लाह करेंगे भी, कि हम लोग अपने पूरे मुल्क को वैक्सीनेट करें अगेंस्ट कोविड, तो उसमें हमें प्रोक्योरमेंट से, परचेजिंग से लेके राइट डाउन टू डिस्पेंसेशन, इंजेक्शन लगने तक, हमें अगर हम सारे स्टेप्स सोचें तो वो बहुत ज्यादा है, और वो लॉजिस्टिक्स का बहुत बड़ा इशू है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि इस वक्त इस टॉपिक को कोई डिस्कस नहीं कर रहा। मेरा पब्लिक हेल्थ के जितने लोगों से बात की, नोबडी इज डिस्कसिंग दिस। ये एक ऐसी चीज है जो आई वांट कि मेरे जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने अपने सर्कल्स में ये बात करें, ताकि ये एक इशू है जो हाईलाइट हो। मेरी एक आवाज है, बट आई एम श्योर कि जब इतने सारे अच्छे लोग मिलेंगे तो वी कैन एक्चुअली मेक समथिंग हैपन। तो कॉस्ट जो है ना इसकी, अगर मैंने एक एस्टिमेट लगाया था जो इन दोनों में रेट्स में को $25 से $30 का बता रहे थे। $10 भी अगर आप लगा लेते हैं ना, $10 का मतलब होता है 1500 रुपए। $10 अगर आप ड्रग एक इंजेक्शन खरीदते हैं, इसमें वेस्ट है, ठीक है, आपका 10% वेस्ट होता है, वेस्ट होने के चांसेस होते हैं। फिर आपको सिरिंजेस चाहिए इतनी सारी, 21 करोड़ का मतलब है कम से कम 30-35 करोड़ सिरिंजेस चाहिए। यानी आप सिर्फ देखें कि जो जो चीजें हमें चाहिए उनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है। सो यस, वैक्सीनेशन इज समथिंग जो हमें हमारी उम्मीद बढ़ाती है, लेकिन हमें बड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा कि ये जो वैक्सीन बना रहा है वो हमें 21 करोड़ वैक्सीन, अगर हमने सब कुछ स्ट्रीमलाइन कर भी लिया ना, तो हमें उठा के अगले दिन ही सप्लाई कर देगा। Exactly, it takes time, और especially the government. मैं इसमें छोटा सा एक बात ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली असल में आपकी बात बिल्कुल सही है डॉक्टर फरिया, आई एग्री विद दैट कि इसमें लॉजिस्टिकली काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं और बहुत सब कुछ होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं, आज से 15 ईयर्स पहले की अगर हम बात करें, तो उस वक्त जो है वो नई वैक्सीन आई थी, एच इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन, गर्दन तोड़ बुखार के लिए। और उसके बाद में फिर उसके कुछ अरसे के बाद में फिर ये कि न्यूमोकोकल की वैक्सीन आ गई। लेकिन ये जो एच इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन थी वो उस वक्त की, आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस वक्त वो तकरीबन 1500-1800 रुपए की पब्लिक को मिल रही थी। और जो न्यूमोकोकल वैक्सीन थी वो उस वक्त 5500 की मिल रही थी। लेकिन खैर वक्त के साथ साथ ये तमाम चीजें आगे चली, और अब ये तमाम वैक्सीन जो हैं ये EPI के अंदर शामिल है, ठीक है। तो मेरे अपना ज़ाती ख्याल ये है कि शायद चूंकि इसकी नीड आइडेंटिफाई हुई, और उसके बाद में फिर इसमें गावी और दूसरी और जगहों पर और इन सब ने फिर इसके अंदर बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और ये वैक्सीन अब जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो हमारे पाकिस्तान के बच्चों के लिए मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिंगर्स क्रॉस्ड एंड कीपिंग आवर होप्स वेरी हाई, व्हाट आई वुड रियली सजेस्ट इज कि देखें, ये अभी तो हम एक इनिशियल फेज में, एक दफा ये वैक्सीन जब कोई आएगी भी तो उसका एक हाइप पीरियड होगा, लेकिन जैसे ही फिर ये हाइप पीरियड होता भी है, फिर डेफिनेटली ये भी मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह मैं कहूंगा कि आप उम्मीद रखिए कि ये एक वक्त आएगा कि जब ये API के अंदर भी शामिल होगी, और फिर उसके बाद में फिर ये मैंडेटरी हो जाएगा सबको लगाने के लिए, और वो भी शायद हो सकता है इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाए। But Dr. Fareed, I want to add one point in the discussion that we are aware of the fact that when COVID arrives, mask नहीं मिल रहे थे, N95 black होना शुरू हो गए थे. We saw a black pictures of our Pakistani fellows who just sold sanitizers on the high prices, and I guess it's the role of a government now to notice this. If this vaccines come तो वो एक बड़ा stable role अपना इसके अंदर play करें. अच्छा, आपके लिए question है डॉक्टर फरीद कि somebody is asking if being parents. I'll just come back to you. जी चलिए add कर लें, then I'll ask the question. Yes, okay. मेरा सिर्फ जो पॉइंट था ये था कि एक तो हाईलाइट हो जाए सप्लाई चेन, दूसरी हाईलाइट ये बात हो जाए कि हम अपनी उम्मीद बांध सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिलैक्स हो जाए और हम प्रोटेक्टिव मेजर्स छोड़ दें, प्रिवेंटिव मेजर्स छोड़ दें। वो अभी भी फ्रंट एंड सेंटर है।
सो जो अल्टीमेट जो सारा वो डिस्कशन का 2 पॉइंट से एक ये है कि हमने सप्लाई चेन को सोचना है, क्योंकि सप्लाई चेन हमारा बहुत बड़ा हिंड्रेंस बनेगा रियलिस्टिकली स्पीकिंग। तो जब तक हमारे पास वैक्सीन नहीं आ जाती, हमने एहतियात का दामन नहीं छोड़ना। दैट्स राइट। थैंक यू। बिल्कुल, मास्क पहन के रखना है। अच्छा डॉक्टर फरीद, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। जी somebody is asking, being parents, what signs one should not ignore and should take their child to the hospital these days? What kind of symptoms they should be observing in the child? ओके, देखिए आजकल बहुत ज़्यादा जो जो कि मिमिक कर रहा है वो फ्लू मिमिक कर रहा है, ठीक है? फ्लू आजकल आजकल क्लिनिक के अंदर मैं देखता हूँ कि हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो है वो मेरे पास एक फ्लू के साथ आ रहा है। कि जी बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, हल्का सा फीवर भी हो रहा है। अब वो फ़ौरन एक ही सवाल होता है कि डॉक्टर साहब कहीं ये कोविड तो नहीं है? तो मेरा जवाब यही होता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर आपके पास घर में और लोगों को अगर सेम सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली फिर ज़रूरत है कि हम उनको चेक भी करा लें, या फैमिली में किसी को कोविड पॉजिटिव हुआ है तो। एक चीज़ और जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखी जा रही है कोविड के साथ, वो है सिवियर बॉडी एक, और इसके अलावा लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। टेस्ट, एग्जैक्टली। बच्चे ये आम तौर पर नहीं बता पा रहे, छोटे बच्चे ये नहीं बता पा रहे, लेकिन ये चीजें बड़ों में और बड़े बच्चों में फौरन पिक हो रही है, बच्चे वो फौरन बता देते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि एक तो जब भी कभी कोई अगर बच्चे अगर आ रहे हैं आपके पास, और ये कि या वो बच्चे को अगर टेस्ट नहीं आएगा या बच्चे को अगर स्मेल नहीं आएगी, तो वो पहला काम ये करेगा कि वो खाना पीना अपना कम कर देगा या छोड़ देगा, ठीक है? दूसरी चीज ये है कि उसका ज्यादा दिल नहीं चाहेगा बाहर जाने का, खेलने का, क्योंकि उसको एक्सट्रीम बॉडी एक हो रहे होंगे, या वो इतना लेथार्जिक फील करेगा कि या कि वो ज़्यादा चाहेगा कि वो बस घर पे बैठ जाए और इसके अलावा कहीं और ना जाए। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सराउंडिंग एंड फैमिली एंड एवरीथिंग, दिस इज आल्सो वन ऑफ द थिंग। थर्ड चीज जो खैर मुझे प्लीज मैं बाद में मुझे थोड़ा सा टाइम और दीजिएगा, क्योंकि मैं इस कोविड से रिलेटेड जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है मैं उस पर भी बात करना चाहूंगा, जो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हर कोई बात कर रहा है, लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को हम बात नहीं कर पा रहे, तो मैं इसमें आपसे थोड़ा सा टाइम लूंगा बाद में। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि ये वो चीजें हैं कि जिसके ऊपर डेफिनेटली अपने डॉक्टर को जरूर विजिट करें और उनको बताएं। एंटीबायोटिक्स का इसमें कोई रोल नहीं है, ये एक वायरल एक इन्फेक्शन है। हाँ, अगर इसके अंदर अगर आपको लगता है कि कोई, और ब्लड काउंट्स वगैरह जरूर करवाइए, और अगर लगता है कि जी के वाकई कुछ प्रॉब्लम अगर आ रहा है, तो फिर डॉक्टर ही आपको प्रिस्क्राइब करेंगे कि कोविड कराना है कि नहीं। मैं ये भी आपको बता दूं कि इस वक्त डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, दे आर ऑन द राइज। मैं आप यकीन करें, बच्चों में इस वक्त मैं कोविड नहीं देख रहा हूँ या बहुत ही कम देख रहा हूँ, लेकिन इस वक्त भी मेरे पास इस वक्त अगर मैं रफ एस्टिमेट आपको बताऊं तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि इस वक्त अभी एक डेंगू के साथ एडमिट हैं, और कभी कम से कम 3 या 4 बच्चे हैं जो कि मलेरिया के साथ एडमिट हैं, और 7 to 8 बच्चे इस वक्त ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइफाइड के साथ एडमिट है। तो ये वो बच्चे हैं आउट ऑफ, समझें कि एक 30 बेड्स के अंदर ये तो सिर्फ यही बच्चे हैं, बाकी दूसरे और बच्चे अलग हैं। तो कहने का मकसद ये कि ये तीनों की तीनों चीजें भी दे आर ऑन द राइज। तो प्लीज अपने बच्चों को इन चीजों से तो बचाएं, और कोविड से तो बचाएं, लेकिन साथ में इन चीजों के लिए बचाएं। अब आजकल सीजन स्टार्ट हो गया डेंगू का, प्लीज अपने बच्चों को फुल आस्तीनों के कपड़े पहनाइए, फुल पैंट्स पहनाइए, ठीक है? शाम के वक्त पर जब बच्चे को अगर बाहर निकाल रहे हैं, बच्चा अगर जा रहा है सुबह में या शाम में, क्योंकि डेंगू का मच्छर शाम के और सुबह के वक्त में ज्यादा, ये ठंडे मौसम में निकलता है, तो प्लीज अपने बच्चों को ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट जरूर लगाइए, ऑयल्स लगाइए, ताकि वो मच्छर से बचे रहें, ठीक है? घरों के अंदर स्प्रे जरूर करें मच्छरों से, और एक डेंगू के मच्छरों से भी बचाएं। तो सिर्फ और सिर्फ इट्स नॉट जस्ट द कोविड दैट वी आर फेसिंग राइट नाउ, इट्स अदर थिंग्स आल्सो। सो प्लीज इन चीजों को भी जरूर ख्याल रखिएगा। ठीक है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी डॉक्टर फरीहा, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था, वो भी डॉक्टर फरीद ने आंसर कर दिया। उन्होंने यही पूछा था कि लाहौर के अंदर और मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों के अंदर ये कॉफ और फ्लू की शिकायत है, तो उसे कोविड समझा जाए या नहीं समझा जाए, बट एज डॉक्टर फरीद एक्सप्लेन कि ये आजकल सीजनल फ्लू ही है। अच्छा, मैं आपसे डॉक्टर फरीहा ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले डाइट के हवाले से, अब माल नरिश्ड बच्चे भी हैं और जो जिनका इम्यून कमजोर है वो भी है। सम मदर्स ईगरली वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ डाइट अ चाइल्ड शुड हैव, कि वो कोविड से कहीं ना कहीं वो महफूज रह सके, और अगर खुदा ना खास्ता अगर उसे हो भी जाए, तो जिस तरह हम कहते हैं डॉक्टर साहब की खुराक अच्छी करें, तो वो पहले से ही बच्चे के अंदर उतनी इम्यूनिटी मौजूद हो।
एक्चुअली इसमें डॉक्टर फरीद वुड प्रोबेबली एग्री विद मी, ऐसा कोई मैजिकल फूड नहीं है जो आपको कोविड से बचा सके, ठीक है? फूड विल नहीं, नॉट वो प्रोटेक्ट last यू। if you remember that on social media and somewhere else we always in सना मक्खी का आप वो लें तो यस आपको यस यस कोविड नहीं यस होगा. यस यस So actually mothers want to know, I'm getting messages on my personal number, नहीं, please ask is there any desi totka related to that, some सना मक्खी type देखें thing which we can use. देखें देसी टोटका जो है ना, मैं एक ब्रोकन रिकॉर्ड हूँ। देसी टोटका ये है कि अपने बच्चों को अननेसेसरीली बाहर वाले लोगों से मिलने ना दें, बाहर फिरने ना दें। दैट इज ऑल द देसी टोटका यू कैन डू। जो डाइट का ताल्लुक है, डाइट ऑब्वियसली अच्छी होनी चाहिए। डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स तो होने चाहिए, प्रोटीन्स होनी चाहिए, अच्छी फैट्स होनी चाहिए, ऑयल्स होने चाहिए। सारा नट्स से आजकल आ रहे हैं, दे आर गुड टू। मॉडरेशन में हर चीज खानी चाहिए। और अगर एक्सरसाइज होती है तो दैट आल्सो बूस्ट्स इम्यूनिटी। जहाँ तक ताल्लुक है कि कोई जादू की छड़ी हो तो वो नहीं है कोई भी, या जादू का सट्टा हो वो भी कोई नहीं है। So So Dr. Fariha, I have हमें a question for you. yes An audience asked the yes yes question that जी during the last wave of COVID, the government seemed grave serious, and same attitude is there in the second wave too. Is government prepared for the adverse effects of second wave, Dr. Fariha? गवर्नमेंट अब क्योंकि डेवोल्यूशन हो चुकी है, तो मैं पंजाब गवर्नमेंट का ये कह ऐसे सकती सवाल हूँ है. कि किसी हद तक प्रिपेयर्ड है। डिड यू आस्क मी ना? मतलब मेरे से पूछा है या डॉक्टर फरीद से पूछा है? जी डॉक्टर फरीहा आपसे. अच्छा, सो ये है कि लेकिन बात सीधी सी है कि जब केसेस बढ़ने शुरू होते हैं, एक दफ़ा एक क्रिटिकल मैथ से बाहर निकल जाते हैं तो एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। 100 से 1000 होंगे और 1000 से 10,000 होंगे। और ये क्योंकि इसका साइकिल टाइम 2 से 3 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो इशू आता है वो ये नहीं है कि इससे कोई बहुत ज़्यादा सिक हो जाएंगे और किसी की डेथ हो जाएगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा और डेथ रेट इतना कम है जैसे आप मीडिया पे देखती हैं। इसका जो सबसे बड़ा हमारा कंसर्न होता है वो ये है कि आपके हॉस्पिटल्स और आपके जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज और आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो ओवरवेल्म ना हो। तो एक चीज है, हकीकत है कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन खत्म किया क्योंकि आवाम चाहती थी कि लॉकडाउन खत्म हो। लेकिन अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है एज पब्लिक, और वो ये है कि हम उन जो SOPs उनको फॉलो करें, क्राउडिंग ना करें, मास्क जरूर बाहर अंदर इंडोर लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करें, शादियां अवॉइड करें। बच्चों को तो स्पेशली ना लेके जाएं, लेकिन आजकल शादियों का सीजन है, वी विल प्रोबेबली सी सम सुपर स्प्रेडर इवेंट्स प्रीटी सून, तो डोंट डू दैट। मार्केट्स में ना लेके जाएं, ना खुद जाएं नेसेसरीली। अगर होम डिलीवर करवा सकते हैं तो करवा लें। तो एहतियातें हैं वो एहतियातें हैं और वो साथ रहेंगी। गवर्नमेंट की तैयारी यही हो सकती है कि गवर्नमेंट फिर से सब चीजों को ताला लगा दे और आपको कह के घर बैठ जाए। दैट इज ऑल इट कैन डू। अगर अब हम पब्लिक हम अपने आप को डिसिप्लिन के साथ नहीं मैनेज करेंगे तो फिर वो अथॉरिटेरियन किस्म का ऑर्डर आएगा और फिर वो डंडे के जोर पे मनवाया जाएगा। तो और उसमें फिर सब कुछ बंद भी होगा। तो सबसे अच्छा यही है कि हम खुद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जहाँ तक हॉस्पिटल्स की प्रिपरेशन का ताल्लुक है, आपको मैं बता दूं, हेल्थ केयर वर्कर्स आर एग्जॉस्टेड। आस्क एनीवन, दे आर एग्जॉस्टेड, स्पेशली पब्लिक सेक्टर में। सो और उनके एग्जॉस्शन और दे हैव सीन टू मच डेथ, दे हैव सीन टू मच वरी, दे हैव सीन टू मच लॉस। आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी लिमिटेड है और जो लिमिटेड है उनके अंदर फर्दर जो हाई एंड रिसोर्सेज हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, वो भी लिमिटेड है। So let's not push that boundary like we did in June and July, जहाँ पर फिर हमारे पास केसेस भी बढ़ गए थे। एक्चुअली मोस्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक सिटीजन पे और पब्लिक पे खुद भी आती है कि अपने आप को उन्होंने किस तरह महफूज रखना है rather than blaming the government for everything. Dr. Fareed, I have a question for you. What tips, home remedies are effective in building immunity and facilitating breathing, keeping in view winters and the second wave of COVID? ओके मैं आपके ये वाला सवाल का भी जवाब देता हूँ और मैं जो भी एक और बात कह रहा हूँ वो उसके साथ उसी के कंटिन्यूशन में कि बात हो रही थी अभी डाइट की बच्चों की। देखिए मैं बहुत सिंपल सी छोटी छोटी चीजें मैं कुछ बताना चाहूंगा स्पेशली पेरेंट्स को कि वो जरूर सुन लें। नंबर 1, इम्यूनिटी बढ़ती है प्रोटीन्स के साथ, क्योंकि ये तमाम हमारे जितने भी ये जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं ये दे आर ऑल प्रोटीन्स। तो बच्चे का प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, स्पेशली एनिमल प्रोटीन जिसमें गोश्त अंडा ये जरूरी है। सेकंड चीज है दालें,
दालों के अंदर भी प्रोटीन्स है, ठीक है। अंडा और गोश्त जो है ये तो बेसिकली जो है वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स है। बाकी इसके अलावा सब्जियां और स्पेशली ये कहिए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जरूर खाएं क्योंकि वो आयरन के साथ है। इसके अलावा फ्रूट्स के अंदर सारे फ्रूट्स खाएं, स्पेशली वो फ्रूट्स यानी जिसके अंदर विटामिन सी की मिकदार ज्यादा है वो जरूर लें। विटामिन सी एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट और ये इम्यूनिटी को बहुत अच्छा बूस्ट करता है। कैल्शियम जरूर लें, तो इसलिए मैं जब भी आजकल जो ट्रीटमेंट मेरे जितने भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं उन सब के अंदर मैं विटामिन सी और कैल्शियम को मैं जरूर ऐड कर रहा हूँ। थर्ड चीज जो आ रही है और वो ये है कि बच्चों को ये कि जो नट्स वगैरह का इस्तेमाल जरूर कराइए। अच्छा, और पानी का सबसे बढ़कर बात है हाइड्रेशन इनके लिए बहुत जरूरी है। फ्लूइड इनटेक इनका जितना अच्छा रहेगा किडनीज उतना अच्छा काम करेंगे, उतना ज्यादा जो है वो इम्यूनिटी इनकी और बेहतर रहेगी। अच्छा, ये तो एक चीज होगी जो कि इनकी डाइट से रिलेटेड है। अच्छा, और इसके अलावा जो आपका जो सवाल था वो थोड़ा सा मुझे बताइएगा फिर से, मैं आपको उसके अंदर बताता हूँ। आपका सवाल एक तो होम रेमेडीज, जी होम रेमेडीज का पूछा गया है कि इम्यूनिटी, वो तो आपने उसका आंसर कर दिया। ब्रीदिंग जो है वो बच्चे की इफेक्ट ना हो, किस तरह उसे विंटर्स के हिसाब से मॉनिटर किया जाए, उस हवाले से पूछा जा रहा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जो ब्रीदिंग के लिए बात है वो ये कि एक तो प्लीज बराए मेहरबानी बच्चे के बच्चों से ज्यादा मैं तो कहता हूँ पेरेंट्स को ये समझाने की जरूरत है कि प्लीज 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 ये बाजार की चीजें ना दें, ठीक है। ये बहुत सारे जो जंक फूड्स आइटम्स हैं, ये स्पेशली जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये जो डब्बे के जो जूसेस, जिसको जो कि सो कॉल्ड डब्बे के जूसेस ही हैं, ये इनके अंदर कोई जूस नहीं होता, ये जस्ट एक सिंपल सैकरीन और पानी है। इट्स नॉट ओनली गुड फॉर नथिंग बल्कि इनफैक्ट दे आर कॉजिंग हार्म, क्योंकि आर्टिफिशियल कलर्स हैं जो कि और मजीद बच्चों को एक इरिटेशन दे रहे होते हैं और इनकी इम्यूनिटी को भी कम करते हैं और इसके अलावा इनको ये खांसी भी कर रहे हैं। तो प्लीज बच्चे को एक दफा अगर देखें, जब भी कभी खांसी होगी, इम्यूनिटी लो होगी, खुद ब खुद उसको और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इन चीजों को प्लीज बिल्कुल ये कीजिए, डाइट से इनको बिल्कुल दूर कर दें। अच्छा, और घर के अंदर भी जरा सफाई का ख्याल रखें और ज्यादा लोगों को ज्यादा प्लीज ये कीजिए एक्सटर्नल्स को अवॉइड कराइए। लोगों को जिसको भी बात करनी है वो फोन पे बात कर लें और इसके अलावा कोशिश कीजिएगा कि बहुत ज्यादा मिलने मिलाने वालों को घर पे ज्यादा ना रखें, ना ज्यादा लोगों को बुलाएं, ना ही दोस्तों के घर जाने की ज्यादा कोशिश करें। और ये जहाँ तक की बात है क्राउडिंग का, आजकल मैं हर जगह देख रहा हूँ कि क्राउडिंग, बाजार में आप चले जाएं, बाजार भरे पड़े हुए हैं। आप शादी हॉल्स में चले जाएं, वहां पर भी लोग अच्छे खासे हैं। कहने को सिर्फ बाहर बस एक मास्क पहना हुआ है, अंदर जाओ तो सब कुछ बराबर है, ठीक है। तमाम चीजें चल रही हैं, कोई चीज रुक नहीं रही है, लेकिन यही तमाम चीजें जो है वो हमारे सेकंड वेव को ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी करती जा रही है। कहाँ तो जब ये 150-200 केसेस हो रहे थे और अब जो है वापस से दोबारा से हम 800-900 केसेस पे चले गए पर डे, ठीक है। और बाकी सही मानों में आपको बता दूं, हॉस्पिटल्स अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब कोई हॉस्पिटल अब जो है वो अब कोविड वाले पेशेंट्स को नहीं लेना चाहता है, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, दे आर फेड अप विद ऑल दिस कोविड। हमें मतलब हम थक गए हैं ये मरीजों को देखते हुए। बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। जितना ज्यादा अपने आप को आप लोग संभाल के चलेंगे उतना ज्यादा हम बचे रहेंगे। वरना जो हालात आजकल चल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि शायद कोई लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन वाले मूड लग नहीं रहे। लेकिन शायद हम उसी तरफ को हम जा रहे हैं कि शायद अब अगर लॉकडाउन होगा तो फिर दोबारा एक बुरे लॉकडाउन की तरफ जाएंगे। तो ये तमाम चीजें करें। और एक बात जो मेरी लास्ट में बीच में कर रहा था, क्योंकि टाइम अब शॉर्ट हो रहा है, आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड कि देखें, मैं आजकल एक चीज बहुत ज्यादा देख रहा हूँ कि बच्चों के अंदर साइकोलॉजिकल इश्यूज बहुत आते जा रहे हैं। बच्चों के अंदर एग्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। बच्चों का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन चूंकि कम होता जा रहा है, बच्चे ज्यादातर ये टीवी, मोबाइल्स, टैब्स और इन चीजों पर जा रहे हैं। दे आर मोर टुवर्ड्स एग्रेशन। और इवन बच्चे अब पेरेंट्स की बात नहीं सुनना चाहते, अपने टीचर्स की बात नहीं सुन रहे, ठीक है। सारा वक्त जो है वो हमारी कोशिश होती थी कि हम उनको मोबाइल और टीवी से दूर रखें, और अब हमने ये कि क्लासेस करवा के हमने वही उनको वापस दोबारा से मोबाइल दे रहे हैं कि बेटा तुम घर पे ही रहो, ठीक है। सो प्लीज इस सिलसिले में जरा सा अपने बच्चों के साथ, जरा उनके साथ थोड़ा सा, स्पेशली छोटे बच्चों के, बड़े बच्चे शायद फिर भी हो सकता है शायद वो समझदार हो, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि उनके साथ थोड़ा सा उनको टाइम दे, उनके साथ थोड़ा सा उनके साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटीज उनके साथ रखें, ताकि एटलीस्ट कुछ तो फायदा हो। वरना क्योंकि मोबाइल्स और लैपटॉप्स और टैब्स ये भी एक बीमारी है बच्चों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 8-9 महीने के अंदर बच्चे जितने खराब होते जा रहे हैं ना, आप यकीन करें कि अब मुझे बहुत डर लगने लग गया है।
जी। True that. Dr. Fariha, I have a question for you. That has plasma treatment really remain effective in treating COVID patients? क्योंकि हमने देखा कि वो ब्लैक में काफी ज्यादा प्लाज्मा सेल भी होते रहे हैं. नहीं, वो ट्रायल फेलियर था और ना सिर्फ पाकिस्तान में उसके कोई आउटकम नहीं हमें नजर आया, डिस्पाइट आवर बेस्ट एफर्ट्स टू अनफॉर्चुनेटली स्क्यू द रिजल्ट्स, बल्कि इंटरनेशनली भी अमेरिका में भी ये ट्रायल्स हुए हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, और जो भी मेटा स्टडीज हो रही हैं सब में यही आ रहा है कि ये बेसिकली इट्स मे बी टेम्पररीली थोड़ा सा फर्क पड़ जाता हो किसी को, लेकिन एज अ ट्रायल एज अ होल आप इसको एज अ थेरेपी नहीं कर सकते. इनफैक्ट द ओनली इफेक्टिव थेरेपी टू डेट जो है ना, जो प्रूवन है, वो डेक्सामेथासोन जो स्टीरॉइड है उसका इफेक्ट आया है, और कुछ जगहों पे एक्टेमरा का आई बिलीव से कुछ थोड़ा सा आया है. रेमडेसिविर का भी इतना अच्छा नहीं आया रिजल्ट. तो इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसकी जो थेरेप्यूटिक्स हैं वो बहुत लिमिटेड है और बहुत अनप्रेडिक्टेबली यूजफुल है. किसी में चलेंगी किसी में नहीं. सो नो, नॉट टू प्लाज्मा, नो प्लाज्मा, नो रेमडेसिविर. और कौन सी बड़ी अच्छी बड़ी डेनोडेर चली थी, क्या क्या डॉक्सीसाइक्लिन भी मेरे ख्याल से लोगों ने दी है, और काफी सारी इस तरह से ना जो चीज जिस पे दाव लगा तो वो देनी शुरू कर दी. बट दिस इज फ्रैंकली इस वक्त कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको हम कहेंगे वो इफेक्टिव है. ठीक है, ठीक है. डॉक्टर फरीद, एक और अहम सवाल है इस कोविड से रिलेटेड. हमने देखा है कि अक्सर घरों में हमने पेट्स रखे होते हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं. आई एम ऑल्सो हैविंग कैट्स एट माई होम. थोड़े से लोग डर भी गए हैं इस चीज से कि क्या कोविड जो है वो एनिमल से भी बच्चे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए, अभी तक के कोविड एक्चुअली बहुत नया है हमारे लिए, हमें बहुत सारी चीजें बारे में पता ही नहीं है अभी तक के. देयर इज नो नोन और प्रूवन थिंग कि ये एनिमल से इसका कोई ट्रांसमिशन टुवर्ड्स ह्यूमंस है. ठीक है, लेकिन थियरीज हैं, लोगों ने अपनी थियरीज बनाई है. ठीक है, और वो एक अलग बात है कि हमने अभी तक एनिमल्स की हमने टेस्टिंग नहीं की. ठीक है, कि उनको अंदर हमने बहुत ज्यादा नहीं देखा, तो इसलिए हमें नहीं लगा. ठीक है, लेकिन मैं भी फिलहाल यही कहूंगा कि until and unless it is proven otherwise, I would suggest that take it as कि वो उनके वहां से ट्रांसमिशन ह्यूमंस तक नहीं है. अगर ऐसा होता तो there would have been many cases reported जो कि शायद एक आध दो दफा जो किसी ने रिपोर्ट किया भी है, तो उसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर जो है वो एक वो नहीं आया है. बहुत वीक वो है उसकी एविडेंसेस हैं. अच्छा, एक और चीज डॉक्टर साहब एड्रेस कर दीजिए. मुझे मौका दीजिएगा, मैं आपकी जानिब आती हूँ डॉक्टर. मुझे बताइएगा डॉक्टर मोहम्मद फरीद साहब, मास्क लगाने की फ्रिक्वेंसी, जो एक मास्क हम यूज करते हैं वो कितनी देर होनी चाहिए? यू हैव एन आइडिया दैट N95 और KN5 मार्केट में 250 से 300 रुपीज तक अवेलेबल है, एंड डेफिनेटली एवरीबडी कांट अफोर्ड इट टू यूज इट फॉर डेली पर्पसेस कि हर रोज एक नया 250 या 300 रुपए का वो मास्क इस्तेमाल करें. Which mask is more effective, और एक मास्क को कितनी देर तक हम चला सकते हैं? देखिए, जो एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क जो कि हम कहते हैं, जो कि आजकल एक हर जगह पर 10 से 20 रुपए में मिल जाता है, आइडियली दैट शुड नॉट बी वर्न फॉर मोर देन अ डे. ठीक है, और अगर आप दिन भर में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको आप डेली आप चेंज जरूर कर दें. या स्पेशली अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा एक्सपोजर है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा आप किसी ऐसी एरिया में जा रहे हैं जहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, तो अगर बेहतर होगा कि अगर आप उस मास्क को चेंज कर लें तो अभी अच्छा है. अच्छा, जहां तक ये बात N95 या KN95 की है, तो देखिए इसके अंदर भी यही वाली बात है कि आपका एक्सपोजर कितना ज्यादा है. फॉर एग्जांपल, हम हॉस्पिटल के अंदर जब हम यूज करते हैं, तो हम हॉस्पिटल के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम एटलीस्ट हम उसको 3 to 5 days तक के हम उसको यूज कर रहे हैं. ठीक है, और प्रोवाइडेड कि आपने उसको प्रॉपरली वॉर्न किया हुआ है, और उसकी प्रोटेक्शन भी अगर आप चाहते हैं तो सबसे बेस्ट ये है कि जो KN95 जो आप यूज कर रहे हैं उसके ऊपर आप एक जो है वो नॉर्मल सर्जिकल मास्क आप एक और पहन लें. तो अगर आप वो KN95 के ऊपर अगर आप एक सर्जिकल मास्क पहन लेते हैं, तो आपकी वही प्रोटेक्शन जो है वो आपका ये मास्क आप इसको 1 week तक भी चला सकते हैं.
अच्छा। जहां तक की बात यह है, जो कि बड़े वाले जो के फिल्टर्स टाइप के जो होते हैं, जो हम हॉस्पिटल के अंदर हम यूज करते हैं, जो बड़े वाले मास्क होते हैं, वहां पर वो तो खैर हम जो है वो हम उसके फिल्टर्स हम 15 डेज टू 1 मंथ पे भी हम उसके चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर वो है जो कि हम कोविड यूनिट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वरना हम वो यूज नहीं करते हैं। आमतौर पर N95 मास्क इज गुड इनफ, और वो इतना काफी होता है कि आप उसको आराम से, अगर आप तरीके के साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद वो आपको 1 वीक तक भी आपको अच्छी प्रोटेक्शन दे सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे कुछ ऐसे भी मास्क फिल्टर वाले हैं जिनका फिल्टर आप खुद चेंज कर सकते हैं, और इवन मैंने कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट भी देखे हैं जिसमें वो कहते हैं आप इसे वॉश भी कर सकते हैं। अगर आप इसमें भी थोड़ा बता दें कि वो बच्चों के लिए वो बेहतर है या मैं नहीं। उसमें बहुत ज्यादा उसके फेवर में नहीं होऊंगा कि देखें एक्चुअली व्हाट इज N95। N95 मींस कि वो 95% प्रोटेक्शन दे रहा है फ्रॉम द वायरसेस एंड एवरीथिंग, ठीक है, लेकिन उसका लेकिन ये जो कपड़ा अगर उसके अंदर है, देखिए ओनली थिंग दैट कैन बी वॉश्ड इज क्लॉथ, ठीक है, ये जो अंदर का ये जो मटेरियल होता है ना, ये वॉश वाला नहीं होता, और वो अगर वॉश अगर आप कर भी लेते हैं तो वो बाद में खराब सा हो जाता है और उसकी एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं रहती। तो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट कीजिए कि ये जो कपड़े वाले जो मास्क हैं, ये इसके अंदर अगर आप कोई फिल्टर लगा रहे हैं और फिल्टर को अगर आप चेंज करते जा रहे हैं, तो बेशक फिर तो आपका कपड़े का मास्क चलेगा, लेकिन अगर आप वो नहीं कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि जाए कि उसका कोई बहुत इफेक्टिवनेस होगा, क्योंकि ऐसे उसका हमने कोई देखे इफेक्ट हैं नहीं। कि हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं कि जहां पर वो बताते हैं कि जी हम मास्क इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन स्टिल दे गॉट कोविड, और जब उनसे पूछते हैं तो पता चलता है, क्योंकि मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे पास कोई ऐसे पेशेंट्स आए हों जो कि कॉन्स्टेंटली वेयर कर रहे हो N95 और उनको जो है वो कोविड हुआ हो। ठीक है। डॉक्टर फरीहा, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? हाँ, इसमें मेरा पर्सपेक्टिव अगेन पब्लिक हेल्थ वाला है, और वो ये है कि अगर सब लोग कपड़े का मास्क पहनते हैं, 90% लोग कपड़े का मास्क पहनते हैं, कपड़े से मुराद ये थिन फैब्रिक नहीं है, जो टी शर्ट का मटेरियल होता है, तो उससे आपकी और आप फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हैं, तो आपका जो वायरस शेड करने का पोटेंशियल है वो 99.8% रिड्यूस हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपने जो मास्क पहना हुआ है वो आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, वो दूसरे को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि आपकी सिक्रीशंस बाहर नहीं जा रही। आपको अगर जी। है तो वो दूसरे तक पहुंच के ड्रॉपलेट प्रोटेक्ट हो रहा है। सो डॉक्टर फ्री की बात ठीक है कि जो लोग मास्क पहन रहे हैं वो कैच कर सकते हैं वायरस को, लेकिन जो लोग अगर एक कम्युनिटी में अगर सारे लोग मास्क पहनेंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली नंबर नीचे आ जाएगा। सो मैं हमेशा यही एडवाइस करती हूँ, क्योंकि हम पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन की बात करते हैं, तो मैं यही एडवाइस करती हूँ कि एवरीवन शुड वेयर अ मास्क एंड एवरीवन कैन वेयर अ कपड़े का मास्क। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपने कपड़े का मास्क पहना हुआ है, आपके इर्द गिर्द के लोगों ने पहना हुआ है, आप सब एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ आपने पहना हुआ है तो आप में तो इतनी डिसेंसी है कि आप दूसरों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरों में नहीं है। N95 का शुरू में भी यही हुआ था, और अब प्रोबेबली आई वुड इमेजिन कि अब दोबारा से होने का चांस है, और वो ये कि ये हेल्थ केयर लेकिन अब प्रोफेशनल्स तो यूज करते हैं। पाकिस्तान, बिल्कुल, लेकिन अब ये पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर भी हो रहा है, इसलिए इजीली अवेलेबल भी है मार्केट्स में। हाँ, लेकिन उसके आई होप कि बावजूद दोबारा। जी। एक बात पता है क्या है, N95 एक ऐसी चीज है, एक केक समझ लें। आप रोटी खाना चाह रहे हैं, रोटी सस्ती है, केक महंगा है। अगर आप बट स्टिल यस, आप और इट्स मैं नॉट शायद अफोर्डेबल खरीद फॉर लेंगे। एवरीवन। यस। हाँ, हम N95 खरीद लेंगे, ठीक है, हम हैंड सैनिटाइजर भी खरीद लेंगे, हम घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी कर लेंगे, लेकिन जिसने बाहर जाना है डेली बेसिस के ऊपर, एग्जैक्टली। कपड़े का मास्क उसके लिए इसलिए अच्छा है कि वो 10 कपड़े के मास्क अगर 20 रुपए का एक मास्क देता है ना, पूरी फैमिली यूज कर सकते हैं, धोएं, डेली का धोएं, इस्तेमाल एग्जैक्टली। करते रहे। तो एग्जैक्टली, ये सो इट जो है डजंट ना, बॉदर ये कि आप चीज, अपने हाँ, बच्चे को N95 मास्क दें या फिर नॉर्मल मास्क दें। एज बट नहीं, वी आर बल्कि मैं रनिंग तो आउट इसी ऑफ बात में टाइम नाउ। एक जी। और भी चीज ऐड करना चाहूंगा कि सॉरी, बस जी। एक लास्ट बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि भाई कि जी। सिर्फ और सिर्फ मास्क ले लेना ही काफी नहीं है, मास्क को प्रॉपर एग्जैक्टली। वेयर करना भी जरूरी है। अब अगर आप देखें तो आजकल एक बहुत यहाँ तक फैशन है आपका मास्क कि नहीं या होना तो वो कान चाहिए। पे लटक जाता है, या फिर वो नाक जो है वो नाक पूरी खुली हुई है, वो मुंह खुला हुआ है, और कुछ नहीं तो बाज़ वक़्त तो बिल्कुल इधर नीचे लगाया हुआ उन्होंने ये कि यहाँ पर हाँ, जिसका और चिन जो कि मुझे प्रोटेक्शन। पब्लिकली मैं आपको बताऊं, टीवी पे, मीडिया पे और इधर उधर पे, मुझे लिटरली मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी तरीके से मैं उनसे मैं टीवी में से मैं पूछ लूं कि भाई आपके मास्क पहनने का क्या फायदा, या मास्क पहनकर आप लोगों को आप क्या सिखा रहे हैं, यानी कि मास्क यहाँ पहनने की चीज है।
आप पहन रहे हैं तो पूरा पहने, डॉक्टर फरीद, लेकिन इट चेहरा भी ऑल्सो दिखाना है। हैपेंड, आपने देखा होगा कि जो लोग बाहर खड़े होकर कुछ खा पी भी रहे होते हैं हॉकर से या कहीं और पे रेस्टोरेंट्स के बाहर भी, मास्क उन्होंने आधा नीचे किया होता है और फिर उसी तरह खा भी रहे होते हैं, डिस्पाइट मैंने एग्जैक्टली ये पढ़ी भी है रिसर्च कि ये डेंजरस भी है आपके लिए, आप और जर्म्स जो हैं वो ज्यादा अपने अंदर डेंजरस है, लेके क्योंकि जा रहे आपके होते हैं। जरासीम जो यहाँ वाले हैं वो तो एक्सपोज थे पहले, अब आपने उनको मास्क हम्म को यहाँ पे लगा के यही वाले जरासीम आप अपने मुंह पे ले रहे हैं, सो इट्स मोर हम्म डेंजरस देन एनीथिंग। ठीक है, so please allow me both of you to please wrap up our discussion. Dr. मोहम्मद फरीदुद्दीन, हेड ऑफ पीड्स मेडिसिन एंड शेयर फैकल्टी इंडस हॉस्पिटल कराची से हमारे साथ थे, और डॉक्टर फरिया इरफान, हेल्थ पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी स्पेशल पंजाब गवर्नमेंट से हमारे साथ थी. Thank you upon again and Pakistan Alumni Network for giving us a chance to discuss such an important issue. और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मुझे खुद भी पता चली और हमारे जो ऑडियंस है डेफिनेटली उन्हें भी पता चली होंगी. बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, और इंशाल्लाह सम टाइम इन फ्यूचर अगेन वी विल बी अगेन है, और हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी बात डिस्कस करें जो हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल हो, हमारी जिंदगी पर कुछ पॉजिटिव असर डाल सके. अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज मास्क भी पहने, एसओपीज भी फॉलो करें, डिस्टेंस भी मेंटेन करें, जरूरी नहीं गैर जरूरी घर से बाहर ना निकले. जैसा डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि डंडे के जोर पे तो नहीं आपको घर बैठाया जा सकता, आप खुद ही बैठ सकते हैं. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. वी आर साइनिंग ऑफ.